You guys watch The Office? Yes, I do. You do? Okay, sweet. Here we go. Just imagine like you have a circuit in which one of the component or one of the side has 500 volts, but the power supply is only 10 volts. This is not science fiction. This is not done because of some transformer or amplifier. It is done using only three components and we can say a magical frequency. So series LCR circuit and resonance is one of the, I can say, one of the most important or powerful topics in AC circuits, alternating current circuits. So how does it happen? It happens because of three components and one magical frequency. So the three components are inductance, capacitor, resistance, and the magical frequency at which we call them at resonance. Okay, so let's begin with the video. First, let me take you with the, I can say, the starting of the chapter or the concept base. So the LCR circuit is the most alive circuit in physics. It has three components, each fighting over the current. The resistor dissipates the energy, the inductor stores it in a magnetic field, the capacitor stores it in an electric field and at one magical frequency called as resonance. The inductor capacitor cancel each other out completely and the circuit behaves as if only the resistor exists. So what is the basic meaning we are talking about here? So just imagine like हमारे पास एक circuit है जिसमें कि हो क्या रहा है कि we have an inductor, a resistor and a capacitor. So यहाँ पर जो resistor होता है ये completely energy को dissipate करता है heat के form में. Means उसको I can say it just removes the energy, or we can say it wastes the energy. On the other hand, the inductor stores it in the electric field and the capacitor stores it, inductor stores it in the magnetic field and the capacitor stores it in the electric field. So what happened here is that both of this inductor and capacitor is on opposite phase to each other. Means अगर एक के पास करंट 90 डिग्री पे आ रहा है, मतलब एक में क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो लीड करता है और एक में हमारा करंट लीड करता है, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कैंसल आउट कर सकते हैं विद द फेस ऑफ एनर्जी. एक में एनर्जी आएगा, एक में एनर्जी जाएगा. दैट्स द पॉइंट वी कॉल इट एज रेजोनेंस. देखिए अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा, जस्ट बी इन द वीडियो. हम लोग यहाँ पर इतने सारे एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स करेंगे कि धीरे धीरे करके आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो या The deep question is why do L and C cancel each other? जैसे कि मैंने अभी आपको बता रहा था, because XL and XC, X हम लोग यहाँ पर देखिए XL and XC have opposite phase effects. जैसे कि मैंने बताया दोनों opposite phases में होते हैं. So inductor makes current lag voltage by 90 degree and capacitor makes current lead by voltage by 90 degree. So these are exactly opposite. So their effect cancel when XL equals to XC. At that point the circuit is purely resistive and the current is maximum. तो इस पोजीशन पे क्या होता है ना कि XL और XC एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. मींस यहाँ पर कोई एनर्जी स्टोर नहीं हो रहा है. और यहाँ पे हो क्या रहा, हमारे पास जो तीन कंपोनेंट था, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर. कैपेसिटर इंडक्टर जब काम नहीं करेगा तो हमारे कौन काम कर रहा है, बस एक रेजिस्टर काम कर रहा है और वो क्या करता है, एनर्जी को डिसिपिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको वेस्ट करता है. सो द करंट इज मैक्सिमम, मतलब कि यहाँ पर एक्सल और एक्सिस में कोई यहाँ पर करंट हमारा यूज नहीं हो रहा है, जो हो रहा है रजिस्टर में हो रहा है, तो करंट भी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है. सो दिस इज नॉट जस्ट मैथमेटिक्स, इट इज फिजिकल टग ऑफ वॉर बिटवीन टू एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट एंड रेजोनेंस इज व्हेन दे रीच अ परफेक्ट ड्रॉप. मींस मतलब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को यहाँ पर एनर्जी नहीं स्टोर करने देंगे या एक फेस में स्टोर करने देंगे, मतलब कि एक जाएगा तो एक आएगा. सो इट वुड बी कैंसल्ड आउट. सो देखिए जैसे यहाँ पर हमारा एक सर्किट है RLC, ऑल ऑफ देम सीरीज. ठीक है, इसको हम लोग सीरीज RLC सर्किट बोलते हैं. ओके, सो I सेम थ्रू ऑल स्टोर्स B फील्ड एंड स्टोर्स E फील्ड. मतलब इंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है और ये हमारा AC करंट है. ओके, अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. तो फेसर एनालिसिस, द डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग. सो इन अ सीरीज LCR सर्किट द सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द थ्री कंपोनेंट्स. सो करंट I इज टेकन एज द रेफरेंस फेसर, बिकॉज यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा सीरीज में, वो बढ़ जाएगा. आपको पता होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारा जब सीरीज में होता है तो वोल्टेज हम लोग यहाँ पर डिवाइड हो जाता है और वहीं पे करंट जो रहता है ये सेम रहता है. सो वोल्टेज रिलेटिव टू दिस करंट VR इक्वल्स टू IR इन फेस विद I, रजिस्टर इज पीसफुल, नो फेस फाइट. मींस हम लोग यहाँ पर जो VR है, जो हमारा रेजिस्टेंस है, वो हमारा इक्वल है यहाँ पर करंट के रेजिस्टेंस से. सो VL इज इक्वल्स टू IXL लीड I by 90 डिग्री एंड VC इक्वल्स टू IXC लीड I by 90 डिग्री. कब, जब इंडक्टर फेस हो वोल्टेज के साथ. ठीक है, और जब हम लोग कैपेसिटर फेस में हो तब क्या होगा, हमारा जो करंट होगा वो लीड करेगा 90 डिग्री से. तो इस दोनों डिफरेंस को याद रखिएगा कि हमारे इंडक्टर में हमारे वोल्टेज लीड करता है और हमारा यहाँ पर
कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, ठीक है, करंट से. सो VL पॉइंट स्ट्रेट अप, VC पॉइंट स्ट्रेट डाउन, दे आर डायरेक्टली अपोजिट एंड नेट रिएक्टिव वोल्टेज VL माइनस VC, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, नेट इज अपवर्ड इंडक्टिव. सो रेजिस्टेंट वोल्टेज विथ R, VR. सो बेसिकली देखिए, ये जो यहाँ पर मास्टर इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसको यहाँ पर एक डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ. ये डायग्राम को ही समझाने की कोशिश किया जा रहा था. जैसे कि मैंने बोला, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, तो अपोजिट होगा तभी एक दूसरे को कैंसिल करेगा. तो जो अपोजिशन होता है यहाँ पर, देखिए ये हमारे यहां पर अपोजिशन है, तो VL यहां पे लीड कर रहा है 90 डिग्री से, VC हम लोग यहां पर लैग कर रहा है 90 डिग्री में I के लिए, ठीक है, I के लिए. तो देखिए हमारे बीच में यहां पर VR बन रहा है जो कि दोनों के फेस में है. तो हमारे यहां पर डायगोनल जो V बन रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हम लोग का दिखा रहा है पाइथागोरस थ्योरम से कि ये हम लोग का हाइपोटेनस या डायगोनल है, ठीक है, इनके बीच का रिजल्टेंट है. तो VL माइनस VC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा. I हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, इसलिए हम लोग यहां पर VL लीड कर रहा है, VC लैग कर रहा है. और हम लोग का मास्टर इक्वेशन क्या बन के आ रहा है, V इक्वल्स टू रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC. अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ. अगर VL माइनस VC इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर पूरे सर्किट में करंट कितना रहेगा, मतलब या बोल सकते हैं करंट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा करंट, या वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बस बचेगा VR स्क्वायर, जो कि रूट से निकल के क्या हो जाएगा, R. ओके, so this is the Pythagoras theorem applied to the phasor, the most important geometric insight of the AC chapter. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. इंपिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है. सो दी कंप्लीट पिक्चर, तो देखिए इसका भी सेम ही है. यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, V में V इक्वल्स टू रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर. यहां पे हम लोग क्या लेंगे, हम लोग यहां पर उसी को रिप्लेस कर देंगे, XL माइनस XC, दोनों सेम ही होते हैं, बस यहां पर X V को रिप्लेस कर रहा है. तो देखिए R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर. थिंक ऑफ Z एज द टोटल ऑपोजिशन ऑफ द सर्किट, इट हैज टू पार्ट. तो बेसिकली इंपेडेंस क्या होता है ना, कि ये टोटल ऑपोजिशन ही होता है. ओके, सो R जो होता है ये रियल ऑपोजिशन होता है, जो कि एनर्जी को वेस्ट करता है हीट के फॉर्म में. और हमारा XL माइनस XC जो होता है ये रिएक्टिव अपोजिशन होता है, जो कि स्टोर करता है और एनर्जी को रिटर्न करता है रेजोनेंस में. सो व्हेन XL इक्वल्स टू XC, मतलब जब रेजोनेंस हो रहा है तो रिएक्टिव अपोजिशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. दोनों एक दूसरे को यहां पर अपोज करके कट कर देते हैं. तो Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R. और इस पर्टिकुलर फॉर्म में मिनिमम इंपीडेंस होगा, मैक्सिमम करंट होगा, सेम जो उस केस में हो रहा था. सो द इंपीडेंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बेस इक्वल्स टू R ऑलवेज अलोंग करंट डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर इक्वल्स टू XL माइनस XC, upward if inductive, downward if capacitance, and hypotenuse equals to Z, angle psi equals to phase angle between V and I, tan phi equals to XL minus XC by R, cos phi equals to R by Z. नहीं समझ आया, अभी आप डायग्राम देखिएगा आपको समझ आएगा. देखिए ये डायग्राम है, ये हम लोग का Z हाइपोटेनस बन रहा है जो डायगोनल है, XL माइनस XC ये हम लोग का यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है जो कि जीरो हो जाएगा, और R हम लोग का बेस हो जाएगा जब ये रेजोनेंस में रहेगा. ठीक है, तो tan phi क्या निकल के आ जाएगा, XL माइनस XC by R, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस. और cos phi कितना निकल के आ जाएगा, R by Z. ठीक है, होप्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा ये अभी तक कॉन्सेप्ट सब. चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ठीक है, अब हम लोग रेजोनेंस को समझेंगे और डीप में. तो कंडीशन क्या रहता है रेजोनेंस होने के लिए, कि XL XC के इक्वल होना चाहिए, तभी ना हम लोग का जीरो होगा, दोनों कट करेगा एक दूसरे को. तो XL इक्वल्स टू XC, तो ओमेगा L इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा C, ये कॉन्सेप्ट होता है. XL इक्वल्स टू ओमेगा L होता है और XC इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा C होता है. इसको भी याद रखिएगा, मैं ऐसे मास्टर फॉर्मूला शीट आपको लास्ट में प्रोवाइड करूंगा वीडियो का. सो देखिए ओमेगा नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर LC. ठीक है, अब LC कहां से आया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग यहां पर किस तरीके से यूज कर रहे हैं. सो वाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड ओनली ऑन L एंड C एंड नॉट R, बिकॉज R यहां पर एनर्जी स्टोर नहीं करता, वो डिसिपिएट करता है. L एंड C ही यहां पर एनर्जी स्टोर करता है. तो बिकॉज रेजोनेंस इज अबाउट XL इक्वल्स टू XC, अ बैलेंस बिटवीन रिएक्टिव एलिमेंट. R हैज नो रिएक्टेंस, सो इट डज नॉट अफेक्ट विच फ्रीक्वेंसी अचीव्स दिस बैलेंस. R ओनली डिटरमाइंस हाउ शार्प द रेजोनेंस इज, कितना अच्छे तरीके से रेजोनेंस हो रहा है, कितना मैक्सिमम करंट आ सकता है. ठीक है, What happens at resonance फिजिकल पिक्चर, मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली जो जो अभी तक बताया उसी को यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दिया गया है. सो एनर्जी स्लैशेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन L एंड C एट एक्जैक्टली द राइट रेट. जैसे कि मैंने बताया एनर्जी स्लैश करता है एक दूसरे को यहाँ पर फेस में, कभी XL कभी XC में. ठीक है, द सोर्स ओनली नीड टू सप्लाई एनर्जी टू कॉम्पनसेट फॉर हीट लॉस इन R. ओके, मैक्सिमम करंट फ्लोज, मिनिमम अपोजिशन Z इक्वल्स टू R. देखिए सेकंड पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है थर्ड पॉइंट. अगर सेकंड पॉइंट यहां पर हो रहा है तब थर्ड पॉइंट क्या होगा, वैलिड होगा, मतलब मैक्सिमम करंट यहां पर फ्लो होगा. VL and VC are individually large but cancel each other in series. VR equals to full source voltage because Z equals to R. Is gives I equals to V by R and VR equals to IR equals to V. Means यहाँ पर Z equals to R है, I equals to V by R, ओम्स लॉ से. तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, V कितना हो जाएगा, IR. ओके, जो ओम्स लॉ होता है. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, VR equals to IR equals to V. ठीक है, Q फैक्टर जो होता है ना, इसको हम लोग यूज करते हैं डिनोट करने के लिए शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस यहाँ पे कितना शार्प है.
ठीक है, मतलब वो आर से ही डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू हम लोग का क्या होता है कि क्यू इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल बाई आर होता है। ये कहां से आ रहा है, अब इसको हम लोग डिराइव करेंगे। इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा नॉट सी आर इक्वल्स टू 1 बाई आर रूट अंडर एल बाई सी। ठीक है, तो हाई क्यू क्या डिनोट करता है कि शार्प पीक है। जब शार्प पीक होगा तो ये वेरी सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी को ही अपने अंदर लाएगा। मींस लाइक अ रेडियो टर्नर दैट पिक्स ओनली वन स्टेशन। ठीक है, लो क्यू में क्या होता है कि इसका ब्रॉड पीक होता है, तो ये बहुत सारे वेवलेंथ में काम कर सकता है, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी में काम कर सकता है, लेस सिलेक्टिव एक्सेप्ट अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी इंडिविजुअली क्या होता है, वीएल इक्वल्स टू वीसी इक्वल्स टू क्यू इनटू वी सोर्स। सो दिस इज व्हाई वीएल एंड वीसी कैन बी 50, 100 इवन 1000 लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज इन अ हाई क्यू सर्किट। जब हम लोग का पीक यहाँ पर एकदम नैरो होगा, तब हम लोग यहाँ पर उसको बहुत टाइम हम लोग इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एम्पलीफाई कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। सो इट सीम्स इम्पॉसिबल बट इट इज परफेक्टली रियल एंड इज यूज्ड इन रेडियो रिसीवर टू एम्पलीफाई वीक सिग्नल। जैसे कि मैंने बताया यहां पर मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है द रेजोनेंस कर्व। इसमें क्या हो रहा है ना कि देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी कम होता है तब हम लोग का कैपेसिटेंस जो यहां पर होता है, सर्किट यहां पर कैपेसिटिव हो जाता है। ठीक, मतलब यहां पर हम लोग का आई यहां पर जो होता है वो लैग करने लगता है, सी यहां पर हम लोग का, वी यहां पर हम लोग का लीड करने लगता है। सो एट वेरी लो एफ is xc dominates capacitive, z is large, I is small, circuit is capacitive. At f increases, xc decreases, xl increases, they approach each other। मतलब कि यहाँ पर रेजोनेंस में लोग आना चाह रहे हैं। At f equals to f naught, xl equals to c हो जाता है, z equals to r minimum, I equals to v by r maximum हो जाता है, और हम लोग का ये रेजोनेंस आ जाता है। As f increases further, xl dominate करता है, इंडक्टिव हो जाता है सर्किट, z इंक्रीज करता है, और फिर I डिक्रीज हो जाता है। So at very high f gives xl डोमिनेट करता है, z लार्ज होता है, I स्मॉल होता है, सर्किट इज इंडक्टिव। So the current versus frequency graph is a bell curve peaked at f naught. The width of the bell is bandwidth. So basically जो ये आप रेड डॉट देख रहे हैं, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, यहां पर हम लोग का रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और उसके जितने भी हम लोग आगे जा रहे हैं, जैसे कि एफ नॉट के आगे जा रहे हैं तब हम लोग का सर्किट क्या हो जा रहा है, इंडक्टिव हो जा रहा है। एफ नॉट के पीछे है तब हम लोग का सर्किट क्या हो जा रहा है, कैपेसिटिव हो जा रहा है। सो दैट इज द मेन वी कैन सी द रेजोनेंस कर्व व्हाट इट डिफाइंस। ओके, बैंडविथ का हम लोग अगर बात करें तो डेल्टा एफ इक्वल्स टू आर बाई 2 पाई एल करके हम लोग लिख सकते हैं, और डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू आर बाई एल। ठीक है, रिलेशन कैसे लिखेंगे क्यू के साथ इसका, क्यू इक्वल्स टू एफ नॉट बाई डेल्टा एफ इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाई डेल्टा ओमेगा। सो हाई क्यू, नैरो बैंडविथ, शार्प बेल, वेरी सिलेक्टिव सर्किट। ठीक है, जब हम लोग का क्यू एकदम शार्प रहे तो। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला फॉर रेजोनेंस क्या होता है, तो ये हम लोग का एक पीवाई था जिससे मैंने ये उठाया था। सो देखिए एफ नॉट इक्वल्स टू रूट अंडर एफ वन एंड एफ टू, ये बार बार एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है और इसको यहाँ पर डीप में एक्सप्लेन भी किया है। तो ये क्यू होता है बिकॉज हम लोग का यहाँ पर जो एलसीआर का रेजोनेंस होता है ना, ये कर्व हम लोग का सिमेट्रिक हो जाता है लॉगरिथमिक फ्रीक्वेंसी स्केल पे। मतलब कि टू इक्वल करंट फ्रीक्वेंसीज आर इक्वली स्पेस्ड ऑन ईदर साइड ऑफ द रेजोनेंस ऑन दिस लॉग स्केल, व्हिच मीन एफ नॉट इज देयर ज्योमेट्रिक मीन। दिस फॉर्मूला इज डायरेक्टली आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो बेसिकली यहां पर क्या बोला जा रहा है ना कि देखिए एफ नॉट की जब हम लोग आगे जाते थे तब सर्किट इंडक्टिव, और एफ नॉट के पीछे तब कैपेसिटिव। तो एक ऐसा पॉइंट दोनों जगह पे एफ वन और एफ टू पे जहां पर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एफ नॉट लेंगे, जो कि कैसे निकालेंगे, रूट अंडर एफ वन इंटू एफ टू। ठीक है, तो ये हम लोग का लॉगरिथमिक मीन या फ्रीक्वेंसी, लॉगरिथमिक फ्रीक्वेंसी भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हाँ, अब 3 केसेस। तो एक्सएल जब हम लोग का एक्सी से बड़ा होता है तब सर्किट इंडक्टिव होता है, मैंने बताया। एक्सी जब बड़ा होगा तब कैपेसिटिव होगा, और एक्सएल जब एक्सी के इक्वल होगा तब रेजोनेंस होगा। होप सो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। मैंने हर चीज में यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप में जाने की मैंने कोशिश किया, और कॉन्सेप्ट पे मैंने यहाँ पर थोड़ा फोकस किया है। तो एप्लीकेशन हाउ रेजोनेंस हेल्प, तो अब यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी तक आपने जितने भी कॉन्सेप्ट किए होंगे यहाँ पर अब वो यूज होंगे। सो रेडियो ट्यूनिंग, वेरिएबल कैपेसिटर चेंजेस एफ नॉट टू मैच स्टेशनरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब वीक या स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर है, मतलब कि आपका नैरो बैंडविड्थ है या आपका वाइड बैंडविड्थ है। टीवी ट्यूनिंग सेम प्रिंसिपल, सेलेक्ट वन चैनल फ्रीक्वेंसी। मेटल डिटेक्टर, रेजोनेंस डिस्टर्ब बाय नियर बाय मेटल डिटेक्टेड। एमआरआई मशीन्स में यूज होता है न्यूक्लियर रेजोनेंस एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, वायरलेस चार्जिंग, रेजोनेंट कपलिंग, ट्रांसफर एनर्जी इफिशिएंटली। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला चार्ट है, आप इसको यहाँ पर वीडियो स्टॉप करके खुद लिख लीजिए, या आप इसको लर्न भी कर सकते हैं और फिर खुद भी लिख सकते हैं एज अ रिवीजन। ठीक है, ये आपके रेजोनेंस में क्या होता है वापस से आपको बता दिया गया। तो z इक्वल्स टू आर मिनिमम, I इक्वल्स टू v बाई आर मैक्सिमम, साई इक्वल्स टू 0 डिग्री, कॉस साई इक्वल्स टू 1, वी आर इक्वल्स टू ओमेगा v सोर्स वोल्टेज, और VL इक्वल्स टू VC, QV इज इक्वल्स टू QV कैन बी ग्रेटर देन V। ठीक है, तो ये हम लोग का रेजोनेंस में होता है। ओके, अब ये कुछ की एग्जाम पॉइंट्स है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे या खुद से घर में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं ये पूरा समरी है इस वीडियो का,
ये आपको हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है ये ऑलवेज डिपेंड ऑन एल एंड सी ओनली, नॉट आर, बिकॉज आर जो यहां पर रहता है ये बस रेजोनेंस को शार्प करने में हेल्प करता है। एनर्जी हम लोग का एल एंड सी में स्टोर होता है, और ये जब दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाते हैं तब ये रेजोनेंस अचीव कर लेते हैं और एनर्जी दोनों फेस में आ जाता है। आर इफेक्ट शार्पनेस, जैसे कि मैंने बताया, क्यू फैक्टर, नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हाइयर क्यू, शार्पर रेजोनेंस, नैरोअर बैंडविड्थ, मतलब कि एक सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी, मतलब एम्पलीफाई करते हैं वीक सिग्नल को। Z equals to R is minimum impedance, never zero. VL and VC can exceed source voltage, not a violation. Never add R plus XL plus XC directly. Always use square root formula. हम लोग वहां पर किए थे। tan psi equals to XL by R for pure RL and tan psi equals to XC by R for pure RC। मतलब जब सर्किट हम लोग का कैपेसिटिव है और जब सर्किट हम लोग का इंडक्टिव है, तो दोनों तरफ हम लोग को tan phi एक चेंज करके लेना पड़ेगा। एक बार XL जब इंडक्टिव है, एक बार कैपेसिटिव, तो XC हम लोग लेंगे। ठीक है, तो हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। होप्स आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज रिवाइंड बैक द वीडियो, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाइए, उसको वॉच कीजिए। अगर तब भी आपको डाउट आ रहा है उस टॉपिक पे या मैं कहीं पे गलत हुआ हूं तो आप मुझे कमेंट आउट कीजिएगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा या आपको समझाऊंगा कि वहां पे क्या होना चाहिए था। ठीक है, so yeah, that was all for the video. I will meet back you in the another video. So yeah, please follow and subscribe my channel, and I will meet you in the other video. Bye. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.